Welcome back, students. Now we will talk about the topic cell size. Cell shape and size both are very closely related to each other. Okay. Now, as I told you in previous session that it is been measured in the unit μm. Mu is the micromillimeter. It is 1,000th part of the millimeter. So when we are trying to distinguish on the basis of their size, you will notice there are different sized single cells are there. जैसे Acetabularia, it is one of the algal species. It is a single cell body is 10 centimeter long. How much? You can imagine 10 centimeter long, which is easily seen by naked eyes. And as I told you, the eggs of different animals, say apes, say reptilia, या फिर birds या reptiles के जो eggs है, that we can see by naked eyes. Even देखो, sometimes we can see the number of eggs laid on the leaves of any plant by insect. That also we can simply see by the naked eyes or by simple magnifying glass, because their size is quite bigger than that of rest of single cell. Understand? One more example is the bacteria. Okay, kingdom Monera है जो पूरा बैक्टीरिया का है. किंगडम मोनेरा क्या है अभी आप डायवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर में सीखेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इज दैट इन दैट वी विल सी. But right now you understand that the whole group of bacteria is ranging in the size from 0.2 μm to 0.5 μm. Understand? Some of the bacteria are exceptionally. Some of the bacteria along with the viruses are very small than that of the general size of the bacteria, that is hardly 0.1 μm or even less than that of. Understand? Now, if you think about the plant cell, प्लांट्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सबसे बड़ा जो सेल है साइज में वो साइकस का ओव्यूल है. जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं साइकस. अभी साइकस आपको कहाँ पे मिलेगा? जो बहुत ही पुराने गार्डन्स है या बोटेनिकल गार्डन्स है वहां पे आपको साइकस का प्लांट मिलेगा. इट रफली लुक लाइक द कोकोनट प्लांट बट इट इज नॉट एज टॉल एज कोकोनट. इट इज शॉर्ट और उनमें ऐसे कोन्स आते हैं, मेल फीमेल कोन. Understand? And they possess the ovule. So the ovule of that cycas plant is considered as the biggest cell in the plants. Clear? So according to the size also we can distinguish between the cells of different organism. आगे चलते हैं सेल वॉल्यूम की तरफ. अभी देखो, some organs are common in many organisms. जैसे ब्रेन, वी हैव ब्रेन. ओके, ऑल द कॉर्डेट्स एनिमल वर्टिब्रेट सबके पास ब्रेन है. हार्ट, ऑल आर हैविंग हार्ट. मैं वर्टिब्रेट्स की बात करी, उसके पहले की बात नहीं करी. मतलब जैसे लायन है, हॉर्स है, टाइगर है, मंकी है, कैट है, बर्ड्स है, ऑल आर हैविंग हार्ट. भले उनका 2 चैम्बर हो, 3 चैम्बर हो, 4 चैम्बर हो, बट हार्ट दे possess. Even for filtration they possess kidneys. Okay, they possess liver, they possess intestine. All the organs are more or less similar in vertebrates. ठीक है? अभी ये जो ऑर्गेनिज्म है उनका वो जो ऑर्गन है, सपोज हम लेते हैं हार्ट का एग्जांपल अगर मैंने दिया है तो आई विल टॉक अबाउट दिस हार्ट. या फिर हम चलो लीवर लेते हैं. सो if these two are the organs which are carrying out same functions everywhere, then it is of same type of cell in every that organism. Understand? Every that organism, and the size and the volume of the individual cell of that particular organ is same in all those organisms in which body this organ is present. मतलब हर एक
एनिमल के हार्ट की जो सिंगल सेल है वो वॉल्यूम में सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि हाथी बड़ा है तो हाथी का हार्ट इतना है तो हार्ट की उनकी सेल्स इतनी रहेगी। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज ऑफ सेम वॉल्यूम, सेम साइज, सेम शेप। अंडरस्टैंड? कोई भी एनिमल छोटा या बड़ा होता है इसका मतलब ये नहीं होता कि उनकी जो बॉडी की जो सेल्स है वो छोटे या बड़े होते हैं वॉल्यूम में। दे ऑल आर सेम इन साइज, इन शेप, इन वॉल्यूम। तो डिफरेंस कहाँ होता है? डिफरेंस होता है नंबर में। किसमें होता है? नंबर में। जाहिर सी बात है, इफ आई एम द ह्यूमन एनिमल, यू आर ऑल्सो द ह्यूमन एनिमल, बट आई एम क्वाइट थीन। मैं बहुत ही दुबली पतली हूँ, हार्डली 30 kg मेरा वेट है। ऑन द कॉन्ट्ररी आई हैव माई फ्रेंड हु वेज 70 किलोग्राम। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी जो बॉडी के सेल है वो काफी बड़े बड़े हैं और उनका वॉल्यूम भी काफी बड़ा है। नो नो, द नंबर ऑफ पर्टिकुलर सेल्स आर लेस इन माई बॉडी एंड द नंबर ऑफ सेम दैट काइंड ऑफ सेल्स आर मोर इन नंबर इन दैट बॉडी। सो ऑर्गेनिज्म छोटा या बड़ा होता है दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर। मीन्स जो वॉल्यूम होता है, जो साइज होती है, वो किस पे डिपेंड होती है? ऑर्गेनिज्म की बोल रही हूँ, वो किस पे डिपेंड होती है? नंबर की। लेस नंबर, देखो, लेस नंबर स्मॉलर इज द ऑर्गेनिज्म एंड मोर इन नंबर बिगर। ओके, अंडरस्टैंड? उनके सेल बड़े नहीं होते। जैसे मैंने एलिफेंट का एग्जांपल दिया, उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं या उनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो क्या ऐसे बड़े बड़े सेल्स होंगे? नहीं, सेल्स की नंबर्स ज्यादा है उनमें। इवन उनका जो शेप है, उनकी जो साइज है और उनका वॉल्यूम है वो पूरा सेम रहता है। डिफरेंस जो है वो है सिर्फ इसमें। एंड इन दी स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल के पूरे केस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच डिफाइंस आवर बॉडी वॉल्यूम। लेस नंबर ऑफ सेल, लेस वॉल्यूम। मोर नंबर ऑफ सेल, मोर वॉल्यूम। अंडरस्टैंड? ऐसा कहते हैं अप्रोक्सीमेटली। जनरली हम काउंट तो नहीं कर सकते, बट सी इफ वी विल कैलकुलेट, एस्टिमेट किया जाए तो हम जो है ह्यूमन, हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, सारे मिला के, सारे टाइप के सेल मिला के। कितने? 100 ट्रिलियन। इज इट विजिबल टू यू? So you can imagine about the rest of animals. It is just a count. It is neither type nor shape nor size, nothing. सारा मिला के इतना है। So you can imagine about the cell number. ठीक है? So फिर से याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज छोटी या बड़ी होना, that is depend upon only the number of cells which are present in that particular animal's body, organism's body. It does not mean that the cell shape of that particular cell, चाहे वो लीवर सेल ही क्यों ना हो, कि वो ह्यूमंस की अलग है, कैट की अलग है, डॉग की अलग है, हॉर्स की अलग है। It is not like that. In each that organism, it is same. What is the difference? Difference in the number. Understand? Clear this topic? So that's all for today. We will talk about the different cell organisms. We will start to discuss about that from next session. Till that time, you read this topic from your textbook and prepare your own notes. And do not forget to send the pics. Clear? Take care.